Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 के टॉपिक रशियन रेवोल्यूशन से द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917। एक्चुअली द रशियन रेवोल्यूशन, as we had discussed in earlier videos as well, it was one of the most important events that took place in the world history, which had influenced the whole of the world, जिसने पूरी दुनिया को influence किया, in the sense that this revolution had established a socialist society there in Russia. Russia जो एक least industrialized nation था, backward nation था यूरोप का in the beginning of the 20th century. After the revolution, it had emerged as one of the leading industrialized nations. It made remarkable progress, economic development within a period of just 20 years after the revolution, that by the end of the Second World War in 1945, it had emerged one of the superpower. And for the next 45 years, it had influenced the whole of the world in different ways. Especially, this revolution had laid down the foundation of a socialist government. The theory of socialism had fascinated the people all around the world. In different countries, there were the reforms in the societies, especially to improve the condition of the workers. और अल्टीमेटली इस रेवोल्यूशन के थ्रू इस चीज पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाने लगा कि स्टेट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट, हैड टू वर्क आउट, हैव टू मेक एफर्ट्स इन ऑर्डर टू improve the condition of the downtrodden in the society, the poor in the society, and not only the poor, but all the people in the society. This revolution took place in two phases, दो phases में. पहला phase, February 1917, which had led to the abdication of monarchy. जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हम रशिया की बात करते हैं तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के शुरुआत में 1914, बल्कि हम कहें 1917 तक, रशिया जो है एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की के रूल में था. द जार निकोलस II was ruling over the Russian Empire. During the 1905 revolution, though he allowed the formation of a consultative parliament, Duma, but we know that he had tried to pack the Duma with the conservatives so that he would be able to exercise all his powers in an unrestricted manner. During the years of the First World War, rather, I should say, the Russian people, they had to face a lots of hardships due to
the Russian participation in the war. And somewhere we find that this participation had led to the unpopularity of the Tsar. So here we are going to discuss about the February 1917 revolution, which had led to the abdication of monarchy. What happened during the winters? During the winters of 1917, the conditions were poor in the capital city. कैपिटल सिटी हमारा कौन सा था? कैपिटल सिटी एट दैट टाइम पेट्रोग्रेड. ये जो सिटी था, द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नेवा. ये जो हमारा सिटी है, सिचुएटेड on the bank of river नेवा. एक्चुअली ये जो सिटी है, नेवा रिवर, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द मिड ऑफ द सिटी. ये जो हमारी रिवर है नेवा, ये हमारा सिटी पेट्रोग्रेड के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है. द सिटी, अगर आप इसका पूरा प्लानिंग को देखें तो ये सिटी उस समय सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन था, उस डिवीजन को वो एम्फसाइज करती थी. जो सोशल डिवीजन्स थे सोसाइटी के अंदर, बिटवीन the high class people, the nobles, as well as the workers. किस तरह से? अगर आप देखो तो इसका लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर नेवा रिवर के लेफ्ट बैंक पर क्या थे? हमारी fashionable buildings, official buildings, and the winter palace, जो जार का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था. राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा, राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा, यहां पर हमारे क्या थे? ऑल फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स क्वार्टर्स. यानी कि जितने भी हमारे फैशनेबल बिल्डिंग्स थे, रिच लोगों की जो बिल्डिंग्स थी, जो उनके घर थे, रेजिडेंसेस थे, वो जितनी भी हमारे ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इंक्लूडिंग द विंटर पैलेस, ये सारे के सारे हमारे रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक यानी कि लेफ्ट किनारे पर थे. और जो हमारा राइट बैंक था रिवर नेवा का, वहां पर सारी फैक्ट्रीज और वर्कर्स क्वार्टर हुआ करते थे. ठीक है. ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ वॉर, वी नो, ड्यूरिंग द years of war, that means the First World War, the Russian cities
the Russian cities were facing acute shortage of food grains. रीजन क्या था कि फूड ग्रेन मेजर सप्लाईज वर मेड टू द आर्मीज। भाई आर्मीज को फीड करने के लिए ज्यादातर हमारा फूड सप्लाई जो है वो भेज दिया जाता था। तो रशियन जो सिटीज थी, दे वर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। और ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती थी जब हमारा वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती थी, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी जब पड़ती थी। तो अगर हम बात करें विंटर्स ऑफ 1917, तो दीज विंटर्स यू कैन से द विंटर्स, द कोल्ड वॉज सीवियर, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी थी। और उस साल एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट। तो ऑब्वियसली देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स देयर। ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। और ये जो हमारा शॉर्टेज था फूड ग्रेन्स का, ये फूड ग्रेन का शॉर्टेज इट वाज मोर एक्यूट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। क्यों? क्योंकि वर्कर्स दे वर पुअर एंड यू नो दैट ए टाइम वेन एवर देयर इज सम नेचुरल कैलामिटी, किसी भी तरह की कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है या कंडीशंस अनसर्टेन होती हैं, तो ऑब्वियसली द पुअर दे वर मोर सीवियरली अफेक्टेड। तो यही रीजन था कि हमारे वर्कर्स जो थे, जो हमारे लेफ्ट बैंक पर रहते थे, राइट बैंक पर जो उनके वर्कर्स क्वार्टर्स थे, वहां पर सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी। यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इट वाज मोर एक्यूट इन द वर्कर्स क्वार्टर कंपेयर टू द फैशनेबल एरियाज। व्हाट हैपेंड, अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं, व्हाट हैपेंड ऑन 22 फरवरी। देखिए, हम इन इवेंट्स को डेट वाइज याद रख सकते हैं। 22 फरवरी व्हाट हैपेंड, a lockout took place in one of the factories located on the right bank। यहां पर वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया एक फैक्ट्री में, राइट बैंक। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 23 फरवरी क्या होता है, वर्कर्स ऑफ 50 more factories join the strike 50 और फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने जो है वो स्ट्राइक ज्वाइन कर ली। और इन फैक्ट्रीज में स्ट्राइक को मेनली जो प्रोवोक किया वो किसने किया, विमेन वर्कर्स ने। यानी कि विमेन दे हैड समवेयर actively participated to carry out this strike, ये लॉकआउट। और इसलिए this day is celebrated as the International Women's Day।
क्योंकि इसने कहीं ना कहीं विमेन की पावर को क्या किया, शो किया। द वर्कर्स क्वार्टर, द वर्कर्स क्रॉस्ड द रिवर and gathered at the center of the city, और सिटी का जो सेंटर था दैट वाज नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। नेवेस्की प्रोस्पेक्ट जो सेंटर ऑफ सिटी था, यहां पर हमारे ये सारे वर्कर्स गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए। अब चूंकि सारे के सारे जो हमारे फैशनेबल एरियाज थे, जो हमारे ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, दे वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, सो द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। ठीक है, तो यहां पर द गवर्नमेंट imposed curfew and by the evening the demonstrators dispersed, वहां से वो चले गए। राइट, तो अभी आप इतना रिवाइज करो, वी कैन जस्ट गो फॉरवर्ड। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जब कर्फ्यू इंपोज कर दिया, तो जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, दे डिस्पर्स्ड। अब the demonstrators returned again on 24th and 25th। 24 और 25 फरवरी को ये जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, जो वर्कर्स थे, स्ट्राइकिंग वर्कर्स, वो फिर से वहां पर जमा हो गए। द गवर्नमेंट called the police and the cavalry to keep an eye on them. Then on Sunday 25 February the Tsar dismissed the Duma। मैंने आपको बताया था कि हमारा जब 1905 का रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस समय पर द जार एग्रीड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसका नाम ड्यूमा था। राइट, तो जार ने क्या किया, 25 फरवरी को ड्यूमा को उसने सस्पेंड कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, दे हैड प्रोटेस्टेड दिस वेरी एक्ट ऑफ द जार। क्यों? क्योंकि वो कंट्री के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे।
On 26th February, the streets of the Petrograd city, यहां पर हम राइट बैंक की बात कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट बैंक की, ठीक है। तो जो हमारा पेट्रोग्रेड सिटी था उसके लेफ्ट बैंक पर जहां पर हमारी सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स लोकेटेड थी, तो ऑब्वियसली वहां पर जो स्ट्रीट्स थी पेट्रोग्रेड सिटी की वर थ्रोन्ड विद पीपल, यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं थ्रोन्ड विद people डिमांडिंग, उनकी डिमांड्स क्या थी? बेटर वर्किंग आवर्स, wages, ब्रैड एंड डेमोक्रेसी। 27 फरवरी, सत्ताईस फरवरी को द पुलिस हेडक्वार्टर was attacked। ये जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने कैवलरी को ऑर्डर किया इन डिमॉन्स्ट्रेटर्स को रोकने के लिए, लेकिन कैवलरी ने लोगों पर फायरिंग करने से मना कर दिया। इवन विद इन द आर्मी, अमंग द ट्रूप्स, सोल्जर्स की एक जो रेजिमेंट थी उसमें एक ऑफिसर्स को मार दिया गया, उसको मर्डर कर दिया गया, उसको गोली मार दी गई, और 3 और रेजिमेंट्स ने क्या कर दिया? म्यूटिनी कर दी। बाय द इवनिंग the soldiers and the workers met in the Duma building and formed the Petrograd सोवियत। उन्होंने एक सोवियत या काउंसिल का फॉर्मेशन किया जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया। अगले दिन एक डेलीगेशन जो है वेंट टू मीट द जार। नेक्स्ट डे a delegation went to meet the Tsar। जार से मिलने के लिए क्या कि भाई आप देख लीजिए, आप गद्दी से हट जाइए और पावर को ट्रांसफर कर दीजिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होने दीजिए, जिससे कि कंट्री के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क करे। द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द जार advised him
advised him to abdicate. उन्होंने एडवाइस किया कि भाई आप हट जाइए, अब आपका रूल खत्म हो गया, आप ज्यादा आप वो करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लुई 16 की तरह से आपको भी पब्लिकली हैंग कर दिया जाए। तो ऑब्वियसली द जार फॉलोड देयर एडवाइस, द जार फॉलोड their advice and abdicated on 2nd March 1917। 2nd March 1917 को उसने अपनी पावर्स को गिव अप कर दिया, गद्दी खाली कर दी। The leaders of workers and the Duma leaders formed a provisional government। उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, देश को चलाने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, जब तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक के लिए उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। ठीक। द इलेक्शंस वर हेल्ड टू इलेक्ट the constituent assembly on the basis of universal adult franchise। ठीक है। सो दिस वॉज द आउटकम ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को लीड किसने किया? पेट्रोग्रेड सोवियत ने। और फाइनली ये जो हमारा रेवोल्यूशन था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इसका एंड रिजल्ट क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। पहले आपका एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की, यानी कि रिमूवल ऑफ द मोनार्की, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द कंट्री, and the formation of a constituent assembly that would frame the constitution for the country, that would decide the future of the country. So this was all about the February Revolution of 1917. So keep on revising, go through the topic, keep on revising. बहुत इजीली हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आप तैयार कर सकते हो। बहुत इजी है ये चैप्टर, लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू जस्ट गो थ्रू द चैप्टर जस्ट लाइक अ स्टोरी, इट वुड बी easier for you to remember all the events. Thank you and keep on revising.